میرے بھائیوں، سفر کے مہینے کے شروع میں بھی لوگوں کی کچھ خرافات ہیں، لاسٹ میں بھی کچھ خرافات ہیں۔ ان خرافات میں سے ایک تو وہ موضوع من گڑت اللہ کے رسول کے نام مبارک پر جھوٹ من گڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، ہاں یہ یاد رکھیے، جھوٹی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے طرف منسوب کی گئی ہے کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی بشارت دی کہ اللہ کے رسول سفر کا مہینہ نکل گیا، ختم ہو گیا، بشرتہ بالجنہ، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ابھی تو الحمدللہ جستجوی حق لوگوں میں کچھ پھیل گیا ہے، بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، لیکن یہ 2018 کی بات تقریباً میں سناتا ہوں کہ یہ نیٹ پر یہ حدیث بالکل عام تھی سفر کے مہینے کے آخر میں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جھوٹ ہے اللہ کے رسول کے نام مبارک پر۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، جو پہلی رکعت میں نے آیتیں پڑھی ہے، تو ان آیتوں کے حوالے سے انسان کے بدشگونی، شگون، خیر، بلائی، شر اور بلائی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ان آیتوں کا ترجمہ سنیے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا عمل نامہ لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، پھر قیامت کے دن ہم اس کے عمل نامے کو اس کے سامنے ایک پھیلے ہوئی کتاب کی شکل میں رکھیں گے، جیسے بندہ اخبار دیکھتا ہے۔ یعنی وہاں پر ہمیں ہماری دن، راتیں، سال، مہینے یہ یاد آئیں گے۔ یہ الفنار کپنی کے راتیں تمہیں یاد آئے گی، یہاں کے ڈیوٹی کے دن تمہیں یاد آئیں گے، یہ نماز بھی یاد آئے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں مرنے دم تک تہجد کی نماز نصیب ہو اور ہم قیامت کے دن اس کو دیکھیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کی زندگی کو ہم اس کے سامنے پھیلی ہوئی کتاب کی صورت میں اور شکل میں رکھیں گے۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ہر بندے کے سر پر 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر۔ یہ عقیدے کی رجسٹر ہے، یہ عمل کی رجسٹر ہے، اور یہ نمازوں کی رجسٹر ہے، یہ اس کے مختلف مجلسوں کی رجسٹر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرمائے گا اقرا کتابک، اپنے عمل نامے کو خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے آپ کے لیے بذات خود کافی ہو حساب کرنے میں۔ تمہاری زندگی کیسی تھی خود دیکھو۔ ایک ساتھی نے کہا، جب یہ کیمرے نئے نکل آئے نا، مخالفات کے جو کیمرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر مخالفہ آ گیا 500 ریال۔ تو میں نے مرور کے آفس میں رجوع کیا، میں نے کہا کہ یہ جو مخالفہ آیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے آدمی نے وہ کمپیوٹر سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ تیری گاڑی ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہ گاڑی پلانے ماڈل کا ہے، یہ تم بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ تم جو ہے نا وہ مڑنے میں سپیڈ لگا کے مڑے ہو، اور وہاں پر یہ سپیڈ ممنوع ہے، جگہ خطرناک ہے۔ کہتا کہ میں نے دیکھا کہ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب کچھ، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا۔ او بھائیو، ہماری زندگی کے حساب کے لیے اللہ رب العالمین ایک تو ہمارے اپنی جسم سے بھی گواہی لے گا، اس کے بارے میں کئی آیات ہیں اور احادیث ہے۔ ایک یہ جو نظام ہے نا دنیا کا، یہ اس نے ہمارے لیے معاملہ بہت آسان کیا ہے۔ دیکھو، سینکڑوں گاڑیاں ایک روڈ پر جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور اس روڈ پر جو ہے نا وہ کیمرہ ہے، اور کیمرے میں سپیڈ پیٹ ہے، سپیڈ وہ اس کو لگایا ہے کہ اتنا سپیڈ جائز ہے، اس کے آگے ممنوع ہے۔ ایک گاڑی آ جاتی ہے اور اس کے
टायर को जो है ना कवर करके कैमरा आगे तस्वीर नहीं, वीडियो बेचता है और फिर इसके नाम पर मुखालफा आता है। और मेरे भाइयों, निजाम इतना सख्त है कि जब तक वो गरामे ना भर दिए जाए तो उस बंदे की डेड बॉडी भी यहां एयरपोर्ट से नहीं निकल सकती। हाँ, अगर यहां दफनाओगे मुर्दे को तो वहां पर उसमें कुछ आसानी है, मुआफ करने की बात है उसमें। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के मखलूक का बनाया हुआ निज़ाम है और उनका चलाया हुआ निज़ाम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हमारे बारे में फरमाया ना, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, यकीनन तुम पर तुम्हारे लिए निगरान मुकर्रर इज्जतमंद फरिश्ते हैं, लिखने वाले, जो कुछ करते हो वो उसको जानते हैं। तुम्हारे उठने बैठने को, देखने को, चलने फिरने को, नमाज में आने को, नमाज से जाने को, तुम्हारे मजालिस को नोट करते हैं। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरत क़ाफ में, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ भी इंसान मुंह से नहीं निकालता मगर उसके सर पर जो है ना फरिश्ते तैयार बैठे हुए हैं, वो लिखते हैं। और क़यामत के दिन उसी सूरत में है, फिर क्या कहेंगे, हाज़ा मा लदैया अतीद, ए अल्लाह इसका अमल नामा ये है। फलिहाजा मेरे भाइयों, ये जो शुरू की आयतें मैंने पढ़ी है, उस आयत में एक लफ्ज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अमली जिंदगी को त्वाइर कहा है। क्या त्वाइर? लुगत अरब में, अरबी जुबान में त्वाइर परिंदे को कहते हैं। किसको कहते हैं भाइयों? परिंदे को। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अमल को त्वाइर कहा है। मतलब ये, जैसे तुम्हारे जिस्म से अमल सादिर हो जाए, परिंदे की तरह उड़ गया, लेकिन जैसे परिंदा गायब नहीं होता वैसे तुम्हारा अमल गायब नहीं होता, नोट हो गया। तो मेरे भाइयों, उस बात की तरफ आ जाओ और बात को समेटता हूं, तवज्जो दो। कोई बदशगुनी नहीं, कोई शगुन नहीं। अगर है तो हमारे अपने अमली जिंदगी में, ये अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर कोई बंदा इस गेट पर डेली साल भर एक फिक्स टाइम पर निकलता है, बगैर गाड़ी के आरण के बस में बैठ जाता है और है मुस्लिम, वो इस मस्जिद में, इस मुसल्ला में आने के लिए तैयार नहीं, तो उसको उसके इस बुरे अमल ने मनहूस बना दिया है। क्या बना दिया है? मनहूस बना दिया है। समझ बात आ गई? और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह कुरान में, कई जगहों में इस तरह की आयतें हैं, मैं एक जगह की आयत पढ़ूंगा। वो आयत है सूरत फुस्सिलत में, जिस सूरत का दूसरा नाम है हामीम सजदा। फअरसलना अलैहिम रिहन सरसरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद के बारे में फरमाया कि हमने उन पर सरकश हवा भेजी, तुंद तेज हवाएं हमने भेजी। फी अय्यामिन नहसात, मनहूस दिनों में। किन दिनों में? लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, ताकि हम उनको जिल्लत का अजाब चखाए दुनियावी अजाब में। वला अज़ाबुल आखिरत अख़ज़ा, और आखिरत का अजाब वह तो और ही रुस्वा करने वाला है। वहुम ला युनसरून, उनके साथ कोई मदद नहीं की जाएगी, वहां पर उनके कोई मददगार नहीं होंगे। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर दिनों को मनहूस कहा। ओ भाइयों, दिन मनहूस नहीं थे, उनके हक में दिन मनहूस थे। कैसे? सुनिए। वो दिन तो हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों के लिए खुशी के दिन थे। क्या दिन थे? खुशी के दिन थे, क्योंकि उनका दुश्मन बर्बाद हो रहा है। हाँ, जो दुनिया में भी काफिर रह गए और आखिरत में काफिर उठाए जाएंगे, तो उन्होंने ये बरकत वाली जिंदगी, ये खैर वाली जिंदगी,
अपनी कुपर पर नहूसत से खुद बरी ही, और वो नहूसत अल्लाह ने जिक्र किया। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औकात को हमारे सामने कैसे जिक्र करता है, रसूलों को हमारे सामने कैसे जिक्र करता है। कालत लहुम रुसुलुहुम, उनको कहा उनके रसूलों ने, यानी ये रसूल इनके रहनुमा थे, अगर बात मानते तो खैर वाले बनते। हदीस में है, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस में है, जब उनको अल्लाह के रसूल ने यमन के तरफ भेजा तो एक बात अल्लाह के रसूल ने ये की कि उनको अक़ीदे तौहीद की तरफ बुलाओ। अगर उन्होंने अक़ीदे तौहीद मान लिया तो फिर फ़अअलिमहुम अन्नल्लाह अफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी यौमिहिम व लैलतिहिम, उनको ये कहो कि फिर तौहीद के बाद उन पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, इनकी दिनों में इनके रातों में, इनकी दिनों में इनके रातों में। ये हमारे दिन है, हमारी रातें हैं। जब मैं मर जाऊं मेरी दिन मेरी रातें खत्म हो गई। अभी जिंदा लोगों की दिन और रातें हैं। ये जिंदगी हमारा एक हिस्सा है। देखिए बात में बात आती है लेकिन फायदे से भरी हुई होगी इंशाअल्लाह, तवज्जो दोगे। ये नमाज मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने कैसे पूर कर लिया अपने हिस्से को, कितनी तवज्जो से मैंने पढ़ी, खुशू खुजू का ख्याल रखा कि नहीं, अल्लाह की आजमत का इस्तेहजार कुछ जहन में था कि नहीं। अगर मुझे अपनी जिंदगी में तौबे की तौफीक नसीब हुई और मैंने देखा कि मेरे नमाजों में तकसीर है, मैं ड्यूटी को कितने अहसन अंदाज से अंजाम देता हूं, तो अल्लाह के घर में अल्लाह की बंदगी के लिए आता हूं तो अपने अफकार पीछे छोड़ता क्यों नहीं हूं। सुनिए, अगर कोई आदमी अधूरा काम अपने सकन में छोड़ के आया है और उस काम का सोच उसके जहन में भी आया है, तो क्या सोच के साथ लगकर वो अपने उस अधूरे काम को पूरा कर सकता है? नहीं पूरा कर सकता। उस काम के लिए तो इसकी बॉडी की जरूरत है, और बॉडी यहां मस्जिद में है, बॉडी यहां मुसल्ला में है। तो ऐसे नमाज का क्या फायदा कि सिर्फ बॉडी हो दिल ना हो, बॉडी हो दिमाग ना हो, इस्तेहजार ना हो, आखिरत का कोई फिक्र ना हो। हमारे नमाजों के बारे में बड़े अफसोस की बात है, न हमारे नमाजों ने हमें जन्नत की शौक याद दिलाई है, इसी तरीके से न जहन्नम का खौफ, न आखिरत का दिन, न अल्लाह की मुलाकात का कोई इस्तेहजार, न कब्र के अंधेरे के बारे में कोई फिक्रमंदी। बस मैं आदी हो गया हूं 5 वक्ता मस्जिद में आने का। बस मोबाइल के साथ जब मैं बैठता हूं तो जहन भी उधर होता है, आंखें भी उधर होती है, दिल भी उधर होता है। चाहे कुछ भी मोबाइल में देखूं, सब कुछ उसको दे देता हूं। तो मेरे भाइयों, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी है, और हमारी इस जिंदगी में अल्लाह ने हमारे लिए 20,000 नमाजें लिखी है, 10,000 लिखी है, 15,000 लिखे हैं, 1,000 लिखे हैं, एक नमाज लिखी है। तो मेरे भाइयों, उसको वो अहमियत दो जो अल्लाह ने अपनी किताब में बताई है कि अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। यकीनन ये नमाज ब्रिक है, रोकती है लोगों को, नमाजियों को बेहयाइयों से। तो जो अहमियत अल्लाह की किताब ने नमाज को दी है और जो अहमियत अल्लाह के रसूल ने नमाज को दी है, मुझ पर फर्ज है कि मैं भी वो अहादीस याद करके समझ कर, आयातें याद करके समझ कर मैं अपनी नमाज को अहमियत दूं, वरना कल को मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी और दूसरी नमाज उसके बाद मेरी नहीं होगी, और मैं कब्र के अंधेरे का राही बना हुआ होगा, और फिर वहां पर न मेरी ड्यूटी काम आएगी, न यहाँ के तनख्वाहें काम आएगी, न मेरी बीवी काम आएगी, और न मेरे बेटे काम आएंगे। अगर मेरे काम आने वाली चीज है तो उनमें से एक ये नमाज है। तो इसको वो अहमियत क्यों नहीं देते
जो अहमियत शरीयत ने बतलाई है। समझ में कुछ बात आ गई कि नहीं? ये देखो, मैंने बात घुमा घुमा कर कहीं और लेके गया है, लेकिन वापस आप लोगों को लाना चाहता हूं भलाई और बुराई की तरफ, शगुद और बनशगुनी की तरफ। तालेगर वाले तेरावलम और स्पेरा वाले तेरावलम च स्पेरा वाले च शेर है और तालेगर वाले पसकिर है। इसको समझ गए कि वो दिन जो हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के बर्बादी का दिन था, वो दिन जिस दिन उनके बर्बादी हुई, वो दिन तो हूद अलैहिस्सलाम के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि वो हर वक्त कहते थे ला वो अज़ाब किधर है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। कौम आद कहती थी कौन है जो हमसे बाजू में ताकतवर हो, और वो कौम जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उनके तरह हमने किसी और कौम नहीं पैदा की। और वो कौम अपने ताकत के घमंड में हूद अलैहिस्सलाम को क्या कहते थे कि ला वो अज़ाब, तो वो अज़ाब और उसका दिन आ गया तो हूद अलैहिस्सलाम के लिए वो खुशी का दिन था, क्योंकि उनके दुश्मनों का अल्लाह तसनस कर रहा है और हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों के लिए खुशी का दिन था। लेकिन वो दिन मनहूस था कौम आद के लिए, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया। एक और जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहसिम मुस्तमिर, इस तरह की कोई आयत है सूरत तूर में। और यहां पर ये जो आयत मैंने पढ़ी है फअरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहसात, हमने उनको मनहूस दिनों में पकड़ लिया। अभी आ जाते हैं, मैं इख्तिसार देता हूं अपनी बात को। शादी में फजूल रस्म में ये नहूसत है। शादी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए तरीकों के मुताबिक ये खैर और बरकत का अमल है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बारे में शरीयत ने 2 मेंढे ज़बह करने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर लोग और रस्म रिवाज में हो भटक रहे हो, ये मिठाइयाँ ले और ये अगर उस वक्त कुछ 1-2 पैकेट मिठाई लाकर किसी का मुंह मीठा करो कोई बात नहीं है, लेकिन वो अकीका छोड़ दो और ये आ गए इनके लिए ये दावत उनके लिए वो दावत, ये मेरे भाइयों अपनी इस खुशी को बजाते खुद मनहूस बनाना है, क्योंकि शरीयत को तुमने पसी पूछ फेंक दिया। इसी तरीके से इसमें जो है ना जहेज की लानत भी आ गई। समझ गए? अगर शरीयत के मुताबिक अपनी दिन रातें भरोगे तो ये रातें भी खैर वाली है, ये दिन भी खैर वाले हैं, और अगर इसकी मुखालिफत करोगे, नासमझी में नहीं, जहालत में नहीं, समझकर बात सुनकर तकरीर सुनकर फिर भी शरीयत से मुंह मोड़े हुए हो, उस शरीयत से जो तुम्हारे बस में है, जो इनफिरादी शरीयत कहलाती है, तो फिर तुमने इतनी खूबसूरत दिनों को और इतनी खूबसूरत रातों को अपनी इस बुरे अमल से बजाते खुद तुमने मनहूस बना दिया। ये जिंदगी इतनी कीमती है कि लोग समंदरों में गोते लगा लगा के इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं और फ्रांसिया जाते हैं, और वो तुर्किया के आगे जो कब्रस और ये ममालिक है, क्यों? अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पर खेल कर, ताकि हम अमेरिका पहुंच जाए, ताकि हम बरतानिया पहुंच जाए। क्यों? जिंदगी बड़ी कीमती है, एक दिन के इतने पैसे बनते हैं। तो मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी कीमती है, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़कर एक जन्नती को जन्नत देता है, अगर इस जिंदगी को हमने किताब और सुन्नत के मुताबिक लगा दिया तो मेरे भाइयों, आखिरी बात ये हो गई, समझ गए कि नहीं? ये जो सफर का महीना है, इसके आखिरी बुध को लोग मनहूस समझते हैं और कहते हैं कि 23,000 मुसीबतें उतरती है, उसके लिए इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। अल्लाह की कसम, ये शैतान उनके साथ खेल रहा है, ये शैतानी रास्ता है, ये रहमानी रास्ता नहीं है, ये मुहम्मदी रास्ता नहीं है। सफर के महीने में खैर है, बरकत है, इसमें कोई नहूसत नहीं। अगर नहूसत है तो इंसान के अपने बुरे अमल में,
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں برے اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلائیوں پر اور اچھائیوں پر اور حسنات پر اور نیکیوں پر مرنے دم تک ڈٹنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔